excess pressure in the liquid drop and bubbles. First, we'll see excess pressure in the drop. What is this excess pressure? Because of the surface tension, this surface tends to minimize the surface area. So there is net inward force to overcome the force due to surface tension. Inside pressure is more than outside pressure. Suppose यहाँ पे 1 atmosphere है, so here it will be greater than 1 atmosphere. Why? Because inside part of the liquid has to overcome the inward force due to surface tension from all the directions. And ऐसे minimizing tendency है, तो inward force लगेगा. So inside pressure is more than the outside pressure, which is called excess pressure. How much more? We are going to derive the relation. Derivation is asked. So let's see. Yesterday we have seen, or day before yesterday, एक formula सीखा था USA वाला. Surface energy, surface tension into change in area. That is also equal to work done. Work done करेंगे, उसका surface area बढ़ाएंगे. So that work done is stored in the form of energy, surface energy, which is S into A. So we are going to use this formula, WSA वाला, and W is equal to force into displacement. इन दोनों को equate कर देंगे, तो we are going to get the excess pressure. Force में क्या होता है? Force is pressure into area. तो यहाँ से हमें pressure का relation मिलेगा. So let's see. Suppose we consider the spherical drop of radius R is in equilibrium position. If radius is increased by dr outward because of the excess pressure, it has a tendency to increase by small amount, very, very small amount, dr. Then extra surface energy, W is equal to S into delta A. Delta A कितना होगा? Surface area इसका increase in surface area, dr की वजह से, dr is outward, तो 4 pi r plus delta r, dr या delta r. Initial was 4 pi r square multiplied by S. So this is the work done to increase the radius by small amount dr till it comes to equilibrium position. ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दो. ये r स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो. ये 4 pi r स्क्वायर हो जाएगा, 4 pi डेल्टा r स्क्वायर प्लस 4 pi इंटू 2 इंटू r डेल्टा r, ये माइनस 4 pi r स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो गया. दिस इज नेग्लिजिबल. डेल्टा r इज वेरी वेरी स्मॉल. थोड़ा सा ही एक्सटेंशन होके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा वो. तो डेल्टा r इज वेरी स्मॉल, स्क्वायर विल फर्दर नेग्लिजिबल. इसको नेग्लेक्ट कर देंगे. तो बचा क्या? ये वाला टर्म 8 pi r delta r into S. Now suppose inside pressure is Pi, outside pressure is Po. So this energy gain comes from work done by excess pressure. ये जो gain of energy है, तो work done कितना होगा? Force into displacement delta r. Force is equal to pressure into area. Pressure क्या? Excess pressure. Pi minus Po. Area कितना है? Initial surface area 4 pi r square. Delta r is the very small increase. Pf is equal to Pa लिखा, P की जगह हमने excess pressure लिखा, A की जगह 4 pi r square. Equate कर दिया. This is 1, this is 2. Equate कर देंगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? डेल्टा r कैंसिल हो जाएगा. 1 r will go. ये 4 pi and 8 pi से 2 बचेगा. तो 2s बचा इसमें, s and 2, और नीचे इसका जो r नीचे आ जाएगा. तो excess pressure is 2s by r, है ना? Small, inversely proportional to r. Smaller the radius, more will be the excess pressure. छोटा ड्रॉप में excess pressure will be more. और excess pressure का सिंबल अगर हमने PE दे दिया, छोटा सिंबल ले लिया इसका, तो हम ऐसे लिख सकते हैं PE excess pressure is 2s by r. इसको छोटा सिंबल दे दो PE, so we can write it like this. All right. So this derivation will be asked in your final examinations.
क्लियर? तो दो इक्वेशन, W इज इक्वल टू S इंटू डेल्टा है, सरफेस एरिया इंटू चेंज इन सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, और दूसरा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इक्वेट करके, और ये टर्म नेग्लेक्ट कर दिया ये वाला, बिकॉज दिस विल बी स्मॉल। बहुत थोड़ा सा एक्सटेंशन होके इक्विलिब्रियम, जिस समय फॉर्मेशन हो रही है ड्रॉप, स्लाइट एक्सटेंशन एंड इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे। देन विल सी फॉर द बबल। पहले बबल का देख लेते हैं। बबल का बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, ओनली वन थिंग इज डिफरेंट। देखो अच्छा, इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक्सेस प्रेशर वर्सेस आर, इनवर्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बोलते हैं उसको ऐसा। इफ आर इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, बड़ी ड्रॉप में कम होगा एक्सेस प्रेशर, और वी कॉल इट रेसिप्रोकल फ्रैक्शन और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, मेनी प्लेसेस वी ड्रॉ दिस ग्राफ है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो ऐसा ही ग्राफ आएगा हमेशा। डोंट ड्रॉ इट लाइक दिस, it will never be straight line, it will never be intersecting. Y inversely proportional to x, when x becomes 0, y becomes infinite हो जाए। x 0 की तरफ जा रहा है तो y infinite की तरफ जाता है। This type of function will never intersect the coordinates. स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्ट करता है, ऐसा ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट करेगा वो। उसकी इक्वेशन कुछ और ही होती है, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, ऐसी इक्वेशन का आता है वो ग्राफ, ऐसा स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, तो इसमें देखो, अच्छा प्रेशर इनसाइड पूछेंगे तो क्या करेंगे? आउटसाइड वाले प्रेशर को इधर शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, तो 2s बाई आर प्लस पी नॉट हो जाएगा। ये आउटसाइड प्रेशर इज शिफ्टेड दिस साइड, तो वी गेट द टोटल इनसाइड प्रेशर। मतलब आउटसाइड से कितना मोर है? 2s बाई आर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर। दिस इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन, टू काउंटरएक्ट द सरफेस टेंशन, इतना प्रेशर एक्स्ट्रा होता है अंदर। So total pressure inside will be 2s by r plus p naught. P naught is the outside pressure. तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 19, what is the pressure inside the drop of mercury of radius 3 millimeter? R is given at room temperature. Surface tension of mercury is given, this one, and atmospheric pressure. The outside is the atmospheric pressure. Now it is kept in atmosphere. So outside pressure will be PA. This will be PA. और सेकंड पार्ट में पूछा एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर में ओनली 2s बाई आर निकालना पड़ता है। पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। हो जाएगा ये। मिलीमीटर है, कन्वर्टेड इनटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, तो डायरेक्ट ही ऑलमोस्ट। दिस इज एडिशनल पॉइंट। सपोज देयर इज द बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल। एयर बबल कहाँ मिलेंगे हमें? लिक्विड के अंदर, एयर में नहीं मिलेंगे। दे विल बी फाउंड इनसाइड द लिक्विड, सर्टेन डेप्थ h पर है। तो इसमें भी ओनली वन सरफेस इज देयर, अंदर वाली सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में है। देयर इज वन फ्री सरफेस ओनली। एयर बबल इनसाइड द लिक्विड विल हैव वन फ्री सरफेस, तो उसका भी एक्सेस प्रेशर 2s बाई आर आएगा। बट आउटसाइड प्रेशर, इसको इधर भेज देंगे, इनसाइड प्रेशर विल बी 2s बाई आर प्लस पीओ। बट आउटसाइड प्रेशर कितना होगा? आउटसाइड प्रेशर will be sum of the atmospheric pressure plus pressure due to liquid column, which is h rho g. So outside pressure will be sum of atmospheric plus liquid pressure h rho g, which is h rho g. तो इसमें डेप्थ जितनी दी होगी तो वो भी h rho g आ जाएगा। सपोज ये बबल बहुत क्लोज टू द सरफेस है तो ये 0 हो जाएगा, फिर हमें h rho g नहीं लेना है। तो बेस्ड ऑन दिस देयर इज वन क्वेश्चन इन एनसीईआरटी बुक, लेट्स सी व्हाट इज दैट। ये वाला है,
ओके, आई थिंक आगे है वो, बिकॉज उसमें और भी पार्ट है, इसलिए आगे आगे है वो, विल सी दैट। ये वाला है क्वेश्चन है ना, बट उसमें और भी पार्ट है। देखो, दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल और लिक्विड बबल, है ना। ऐसे सोप बबल है, वेरी थिन है ये, इसको थिकनेस ज्यादा दिखा दी। तो अंदर भी एयर रहेगी। लिक्विड बबल जो हम ब्लो करते हैं, वो रिंग रहता है, उसको सोपी बबल में डाल के वी ब्लो इट एंड बबल्स आर फॉर्म, सोप बबल्स आर फॉर्म्ड इन एयर। तो बोथ साइड देर आर थ्री सरफेसेस। तो क्या होगा, ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी ऊपर, इनटू टू करना पड़ेगा। इन केस ऑफ बबल देर आर टू इंटरफेसेस इन कांटेक्ट विद द एयर। टू इंटरफेसेस हैं जो कि एयर के साथ कांटेक्ट होते हैं। तो अप्लाइंग द अबव आर्ग्यूमेंट इनटू टू कर देंगे, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। उसमें 8 आया था, दिस विल बिकम 16। और सेकंड इक्वेशन रिमेनिंग सेम, इक्वेट कर देंगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा, एक आ गया और 4 पाई से 16 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2, जो सरफेस टेंशन वाला टर्म है उसके साथ 2 आ गया। तो पहले 2 था, अभी 4 हो गया। तो इसमें इट इज ट्वाइस ऑफ सेम रेडियस एंड सरफेस टेंशन। एक्सेस प्रेशर in the bubbles are twice as compared to previous one. Because of two surfaces, two interfaces or two free surfaces. ठीक है, तो ये डेरिवेशन पूरा करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, ऊपर वाले स्टेप में इनटू टू कर देना, अदरवाइज एज इट इज। तो आउट ऑफ टू डेरिवेशन वन में भी आस्क। ऑलराइट, तो ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन। तो 4s एक्सेस प्रेशर ही पूछा है, तो 4s बाई आर निकालना है। पुट द वैल्यू, रेडियस इज गिवन एंड सरफेस टेंशन इज गिवन। दो ही टर्म चाहिए हमें, रेडियस एंड सरफेस टेंशन। तो ये आ जाएगा, इफ एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशंस आर फॉर्म्ड एट द डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर, तब क्या होगा। तब उसमें पूछा है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड, पीआई निकालना है किसमें, एयर बबल में। तो एयर बबल में 2s बाई आर होता है, और आउटसाइड प्रेशर इज पीए प्लस एच रो जी, दैट मेक्स इट इनसाइड प्रेशर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ये 2s बाई आर, तो ये तो तुम्हारा 40 हो जाए, सॉरी 10 रह जाएगा जी, है ना। 4s बाई आर 20 है, तो ये 10 हो जाएगा, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना दिया है, एच रो जी भी पुट कर दो, सॉल्व कर लो। तो इसका सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1.06 आ गया। ये सॉल्व किया है तो 1.06 इंटू 10⁵ आना। तो दिस कम्स टू बी 1.06 into 10⁵ fast. So this is slightly different question. Theory कुछ भी नहीं है, direct question पूछ लिया, but you have to use your common sense to get the right answer of the second part. All right. So this can be important question. एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो, if the ratio of excess pressure of two liquid drops of same radius, same liquid at same temperature is 1:2, एक्सेस प्रेशर का रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लगा दो, 2s बाई r1 अपॉन 2s बाई r2। तो ये r2 बाई r1 आ गया, है ना। तो एक्सेस प्रेशर दिया 1/2 पुट कर दिया, यहाँ से r1 बाई r2 2:1 आ गया। एरिया में 4 पाई r1 स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर आता है, सरफेस एरिया में 4/3 पाई r क्यू आता है। तो यहाँ पर r1 बाई r2 का स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। r1 बाई r2 कितना है, 2:1, 4:1 आ गया, ये 8:1 आ गया, है ना। देखो 1:2 दिया है, प्रेशर कम किस में है, बड़े बबल में कम होता है, बड़ी ड्रॉप में कम होता है। तो उसका देखो, सरफेस एरिया मोरर है, वॉल्यूम भी मोरर है, इनवर्स था ना।
छोटे ड्रॉप में, छोटे बबल्स में कम प्रेशर इज मोर। प्रेशर मोर किस में, 2 टाइम्स किस में, वो छोटा होना चाहिए, उसका उसका जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कम आना चाहिए। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं इसमें। अभी अभी जस्ट टेल मी हाउ टू गेट दिस क्वेश्चन। गो थ्रू, प्रेशर इनसाइड इज गिवन and both the liquid drops are in 1 atmosphere pressure, to find the ratio of their volumes. बोलो क्या आंसर होगा? टेंटेटिव आंसर आइडिया लगा सकते हैं? गेटिंग? क्विक आंसर दो। In fact, this is the same question indirectly given. Excess pressure is pressure inside minus pressure outside. The pressure inside is 1.01, outside is atmosphere. Inside is it's 1.01 atmosphere, outside is 1 atmosphere. तो डिफरेंस इतना आया, इसका डिफरेंस इतना है, तो एक्सेस प्रेशर का रेशियो निकाला 1:2। दिस बिकम सेम क्वेश्चन, प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। उसमें एक्सेस प्रेशर वाज डायरेक्टली गिवन, हियर इनडायरेक्टली गिवन। प्रेशर इनसाइड दे दिया in terms of atmospheric pressure and outside is 1 atmosphere. तो difference will give you excess pressure. फिर रेशियो निकाला तो उससे R1/R2 मिल जाएगा and then we get the same answer. ठीक है? इसका आंसर दे सकते हैं यहीं पर, क्विक आंसर। 2 soap bubbles contain air are connected by thin tube. If valve connecting them is opened, air will flow from which bubble to which bubble? बीच में वाल्व है, एयर किधर से ए से बी की तरफ जाएगी या बी से ए की तरफ आएगी? Air will flow from high ए से pressure भी to low जाएगी pressure. Why? सर, ए में ज्यादा प्रेशर है Okay. इंटरनली। हाँ, pressure answer is A to B. Since more pressure. कैसे? Pressure inside A will be 2S/R1 plus outside pressure 1 atmosphere दिए, और इसमें तो inside pressure inside A will be more because R1 उसका कम है. Excess pressure is inversely proportional to R. तो यहाँ पे प्रेशर मोर है तो एयर इधर से इधर जाएगी. Answer is from small bubble to big bubble because pressure inside A is more because it is smaller one. ठीक है, तो इसमें generally we have the tendency to reply bigger to small, which is not correct. ठीक है. Now ऊपर जो देखो, अगर ड्रॉप या बबल हम ले, if you take the drop और बबल, तो अंदर वाली सभी सरफेस कॉनकेव होती है, बाहर सरफेस कॉन्वेक्स होती है सारी. तो प्रेशर किधर ज्यादा है? कॉनकेव साइड में मोर है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स, है ना. तो इफ वी टेक दिस सिचुएशन, सपोज ऐसे ले रहे हैं, लिक्विड नीचे की तरफ है, पार्ट ऑफ द ड्रॉप ले रहे हैं, इसको मैं ऐसे कंप्लीट करें ऐसा, तो प्रेशर किधर ज्यादा होगा? डी पर ज्यादा होगा, कॉनकेव विद दिस साइड. कितना डिफरेंस होगा? 2S/R. R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसका अगर हम पूरा स्क्वायर बनाएंगे तो ये रेडियस आ जाएगी. फ्लैट सरफेस में क्या होगा? PA minus PB is equal to 2S/R.
R will be the infinitive, फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, तो जीरो है, फ्लैट सरफेस में जीरो, जितना प्रेशर इधर उतना प्रेशर नीचे, बट ए बी शुड बी वेरी क्लोज टू द, एचरोजी वाला फैक्टर नहीं डालना हमें, ए बी शुड बी शोन वेरी क्लोज टू द सरफेस, एचरोजी शुड बी न्यूट्रलाइज्ड। इसमें क्या होगा, इसमें कॉनकेव किधर है, ऊपर है कॉनकेव, है ना, वो अपना कैसा, वो एयर बबल जैसा, तो अंदर कॉनकेव एयर, तो PA minus PB is 2S by R. तो pressure at A is more by 2S by R in this case. ठीक है, तो कॉनकेव साइड हमें आइडेंटिफाई करनी है, उधर प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर विल बी मोर एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। ये लॉजिक हम नेक्स्ट डेरिवेशन में लगाने वाले हैं। जब हमने वो पढ़ा था ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट, जब ग्लास एंड वाटर होता तो ऐसा बनता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पर मर्क्यूरी में ऐसा बनता है, ये वाला एंगल। तभी हम वाटर एंड ग्लास का देख रहे हैं इंटरेक्शन। ठीक है, कैपिलरी राइज, थिन, कैपिलरी मींस वेरी थिन, हेयर लाइक थिन, लैटिन वर्ड है कैपिलरी, इट इज लाइक हेयर, हेयर जितना थिन ट्यूब। इफ यू पुट इट इनटू द लिक्विड, देयर इज द tendency of rising of liquid in the tube called capillary action. So because of capillary action, so many natural phenomena we see, water rises in the narrow gaps in the from the root to the top of the tree. कॉटन विक्स होती है दिए में, या फिर केरोसिन लैम्प रूरल एरिया में यूज करते हैं, कॉटन विक्स होती है, तो उसमें that oil rises in the capillary tube, and cotton और ब्लॉटिंग पेपर हम देख सकते हैं, उसमें भी आजकल तो इंक वाले पेन नहीं आ रहे, पहले वी यूज्ड टू कीप द ब्लॉटिंग पेपर, इंक लीक होती थी तो उसको ब्लॉटिंग पेपर से अब्सॉर्ब करते थे, है ना, एंड so many other phenomena you can give the example. ठीक है, तो now derivation for capillary rise in the tube, ये सपोज हमने थिन ग्लास ट्यूब ले ली, ओपन एट बोथ द एंड्स, इसको हमने इसके वाटर के अंदर डाल दिया, तो नाउ यू सी, इफ यू इमेजिन कि ऐसे इतना है बस, इफ यू इमेजिन कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कर्व सरफेस बन गई, मेनिस्कस बोलते हैं उसको, मेनिस्कस कॉनकेव अपवर्ड, तो A एंड B आर एट सेम लेवल, देखो A एंड B आर एट सेम लेवल, A पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, B पर भी 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, लेकिन अभी हमने देखा कॉनकेव साइड में प्रेशर मोर है, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा B पर, 2S by 1 एटमॉस्फेयर से कितना कम होगा, यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर है, तो B पर PA minus 2S by R होगा, तो इतना कम पड़ रहा है, होना कितना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, बिकॉज A पर भी 1 एटमॉस्फेयर सेम लेवल पर है, तो जो 2S by R है उसको काउंटरेक्ट करने के लिए इसमें लिक्विड राइज हो जाता है। कब तक राइज होगा, जब तक HRO, सपोज यहाँ तक राइज हो रहा, सॉरी यहाँ तक राइज हो रहा है, टिल HROG इज काउंटर, मतलब इट इज इक्वल टू 2S by R, जो प्रेशर कम था, तो यहाँ पर अभी 1 एटमॉस्फेयर बन जाएगा PA, इसको लिक्विड राइज होने से इट विल राइज अप टू द हाइट H, दैट्स व्हाट इज द लॉजिक हियर, यहाँ पे राइज हो जाएगा, और कितना, टिल HROG इज इक्वल टू 2S by R, है ना, liquid rises in the tube till the difference vanishes, 2S by R कम था, देखो हमने देखा प्रेशर on convex side will be 2S less by 2S by R, जबकि प्रेशर at A should be equal to pressure at B, है ना, consider vertical capillary tube of, इसका internal radius R है, तो ये जो मैंने लिखा है उसी को हमने इंग्लिश लिख दिया, surface of water is concave, that means there is a pressure difference between two sides of top surfaces, which is given by 2S by R. R is the radius of curvature of liquid, that is pressure at B is less than 1 atmosphere by 2S by R, but pressure at B should be equal to pressure at A, which is 1 atmosphere, both are at same level, so liquid rises in the tube till this difference vanishes,
तो एच रो जी कितना सेटल हो जाएगा, जितना कि कम था 2s/r। अभी यहाँ पर ए पर और बी पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। इट मीन्स ऊपर जाने से प्रेशर कम होगा, बीच में कितना होगा प्रेशर, लेस देन 1 एटमॉस्फेयर। इफ यू पंच द होल ईयर, इफ आई आस्क यू हाउ मच विल बी द रेंज, यहाँ पर अगर सपोज मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक होल पंच कर दे, तो ये रेंज कितनी आएगी, तो आंसर विल बी 0, लिक्विड विल नॉट कम आउट। यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर है और ऊपर जाने से लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे 2s/r, फिर ऊपर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर, तो बाहर तो 1 एटमॉस्फेयर है, that will not allow the liquid to come out because here pressure is less than 1 atmosphere, here is 1 atmosphere, तो लिक्विड बाहर ही नहीं निकलेगा। अगर होल पंच कर दो, इट विल नॉट कम आउट। ठीक है, तो यहाँ से हमें कैपिलरी राइज मिल जाएगा, बट हमें रेडियस ऑफ द ट्यूब के टर्म में चाहिए। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखो ये ऐसा, उसका सेंटर यहाँ पे आर, बट हमें रेडियस ऑफ ट्यूब के टर्म में चाहिए, ये स्मॉल आर के टर्म में। दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो दिस एंगल विल बी अगेन थीटा, तो cos थीटा विल बी r अपॉन कैपिटल R। R इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, ऊपर लिखा था हमने, cos थीटा इज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R को इधर ले आएंगे, तो r बाई cos थीटा, ये r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, नीचे स्मॉल r ऊपर cos थीटा, तो कैपिलरी राइज का फार्मूला 2s cos थीटा बाई r रो जी। ठीक है, कितने टर्म्स आ रहे हैं इसमें, वी हैव, यहाँ से ही मेन डेरिवेशन है, देखो सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, आर रो जी, जी कांस्टेंट है, तो एटलीस्ट 4 टर्म्स शुड बी नोन। और प्योर एंगल के लिए, प्योर वाटर के लिए थीटा 0 होता है, तो ये भी पता है, ये 1 हो जाएगा, cos थीटा विल बी 1। सरफेस टेंशन, रेडियस एंड रो पता होने चाहिए। यहाँ भी देखो हाइट विल बी मोर व्हेन रेडियस इज स्मॉल, थिन ट्यूब में ज्यादा हाइट रहेगी, कैपिलरी राइज विल बी मैक्सिमम। क्लियर, ये डेरिवेशन भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, अपना एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन मरकरी के लिए पूछा है, तो उसमें एंगल कितना दिया है 140, तो cos 140 विल बी cos 90 प्लस कितना आएगा 50 डिग्री, 135 देते तो राउंड फिगर में आ जाता है ना, 135 में cos 90 प्लस 45 हो जाता है, तो sin 40 माइनस sin 45 आता है, तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कम करके देते हो, सो दैट यू डोंट नीड द टेबल। तो टेबल से देखना पड़ेगा, cos 140 विल बी नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फॉर मर्क्यूरी, ओके यहाँ पे मैंने ये लिखा था, देखो ये ऊपर पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है, मर्क्यूरी में एंगल मोर देन 90 होता है, तो उसमें कैपिलरी राइज की जगह कैपिलरी फॉल होता है, नीचे आ जाता है लेवल, पहले इतना था अभी नीचे आ जाएगा, फार्मूला यही रहेगा, H विल बी नेगेटिव, मतलब इट इज कैपिलरी फॉल बाय दैट अमाउंट। तो सारी वैल्यूज दी है देखो इसमें, यू कैन सॉल्व इट, रेडियस ऑफ द ट्यूब इज गिवन, कितनी चाहिए हमें 1 2 3 4 पॉइंट चाहिए, तो ये हो गया। और यहाँ मरकरी भी दी है, मरकरी की डेंसिटी दी है, और सरफेस टेंशन भी दिया है, you can get the answer to 29। इसका ग्राफ भी सेम आएगा, when R goes up H decreases, वाइट ट्यूब लेंगे तो H बहुत कम मिलेगा। देखो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, देखो सपोज ये ट्यूब को टिल्ट कर दो ऐसे, फिर क्या होता है इसमें, कैपिलरी अगेन लिक्विड राइजेस टिल वर्टिकल हाइट बिकम सेम, क्योंकि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ये प्रेशर डिफरेंस पे एक्ट कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द वर्टिकल हाइट, तो इंक्लाइन ट्यूब में
वो अगेन इट विल राइज टिल वर्टिकल हाइट बिकम सेम. तो जैसे ये क्वेश्चन, कैपिलरी ट्यूब इज tilted at angle 60 with the vertical. If initial vertical height is 10 centimeter, find the inclined height. ऐसे कर दिया तो ये एंगल थीटा, तो cos थीटा विल बी h डैश अपॉन h. हमें h डैश निकालना है, h अपॉन cos थीटा. h 10 दिया है, cos 60 is 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा 20, तो ये 20 हो जाएगा. ये अगर h 10 है तो एंगल 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हाइट विल बी डबल. बैरोमीटर में भी लिख सकते थे, टोरिसली बैरोमीटर था ना, उसमें भी अगर हमने इंक्लाइन किया तो 76 की जगह अगर 60 डिग्री इंक्लाइन कर दिया बैरोमीटर को, उसके ग्लास ट्यूब के बैरोमीटर को, तो 76 था ना, तो उसका डबल हो जाएगा, 152 हो जाएगा. 60 डिग्री वर्टिकल से इंक्लाइन किया. हॉरिजॉन्टल से एंगल दे देंगे तो 90 माइनस हॉरिजॉन्टल से एंगल करके फिर यूज करो. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ओके. तो ये तुम्हारा देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सॉल्व एग्जांपल है. इसमें दिया है कि ये ट्यूब है और नीचे इसमें यहाँ से ब्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पर बबल, हेमी बबल ब्लो हो रहा है. तो उसमें प्रेशर इनसाइड द हेमी एयर बबल. तो वही फॉर्मूला लगेगा अपना एयर बबल इन लिक्विड का. प्रेशर इनसाइड निकलना है तो ये आउटसाइड प्रेशर को इधर भेज दो. फिर से वही आउटसाइड प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी. और ये आर जो होगा, जो ट्यूब का रेडियस हेमी में रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड वो दोनों सेम रहते हैं. रेडियस ऑफ ट्यूब एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहते हैं. तो प्रेशर इनसाइड निकलना था. आल्सो कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर. एक्सेस प्रेशर में 2s/r आएगा, इवन इफ इट इज बबल, बट इट इज द एयर बबल इन लिक्विड. ठीक है. बस ओनली वर्ड यूज किया कैपिलरी ट्यूब, बट कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला नहीं है, उससे हम ब्लो कर रहे हैं. यहाँ से हवा ब्लो कर रहे हैं, नीचे बबल बन रहा है. दिया देखो हेमी स्फेरिकल बबल दिया. तो नथिंग टू डू विद द कैपिलरी ट्यूब, एक्सेस प्रेशर वाला ही फॉर्मूला लग रहा है. ऑलराइट. तो ये क्वेश्चन एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 30 है. तो देखो इसमें क्या है, अभी यूट्यूब के हमने क्वेश्चन किए थे, उसमें दोनों आर्म इक्वल डायमीटर की थी. इसमें दिया है कि इसका डायमीटर एक का छोटा है एक का बड़ा है. कितना कितना दिया, 3n, दूसरे का डबल है. तो क्या होगा, यहाँ भी एक्सेस प्रेशर होगा, यहाँ भी प्रेशर डिफरेंस होगा, यहाँ भी प्रेशर डिफरेंस होगा. ड्यू टू दैट प्रेशर डिफरेंस देयर विल बी अनइक्वल हाइट्स हियर, अनइक्वल लेवल. ये पूछा है कितना लेवल डिफरेंस होगा. तो क्या करेंगे, जो थिन होगा उसमें एक्सेस प्रेशर जो है, प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लाइंब करता वो. तो H1 माइनस H2. और वाटर है, वाटर का cos थीटा 1 हो गया, तो cos थीटा 1 हो गया दोनों में. 2s/r रो जी, 2s/r2 रो जी. 2s कॉमन ले लिया, रो जी, और यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2. तो ये वैल्यू पुट कर दो. रेडियस भी दी हुई है 3 and 6. तो इवन इफ सेम लिक्विड है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन देयर इज द लेवल डिफरेंस. अदरवाइज लेवल डिफरेंस नहीं होता जब तक दूसरा लिक्विड नहीं डालते एक तरफ से. तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है सर, कैपिलरी राइज का, है ना. तो दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर. वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर. एक दो क्वेश्चन और भी हैं रेशनिंग क्वालिटी के बुक से. देखो ये डिफरेंट शेप के हैं दैट ट्यूब्स, और पूछा है कि इनका जो है जो लेवल डिफरेंस, हमने वर्टिकल लेवल डिफरेंस एच लिया, तो डेप्थ एच पर कितना प्रेशर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर. रैंक दम अकॉर्डिंग टू द प्रेशर एट डेप्थ एच. ग्रेटेस्ट फर्स्ट. ए में मोर होगा कि बी पर मोर होगा कि सी पर कि डी पर. 4 containers of olive oil.
तो सेम डेप्थ पर प्रेशर सेम है, तो सेम रहेगा. It is independent of the shape of the container. It depends upon the vertical height only. बर्नौलीज थ्योरम से हमने प्रूव भी किया था. तो आंसर इज सेम, टाई इन ऑल द केसेस. ठीक है. और ये कैपिलरी उसका कंटिन्यूटी इक्वेशन का है. देखो यहाँ से कितना फ्लूइड, टोटल फ्लूइड फ्लोइंग इन विल बी इक्वल टू टोटल फ्लूइड फ्लोइंग आउट. यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से भी इन है, यहाँ से भी इन है. इनको सबको ऐड कर लो. 4 + 8 12 + 5 17 + 4 कितना 21. आउट कितना जा रहा है? 2 and 6 8 जा रहा है. तो बचा कितना? वो इधर से इधर जाएगा. तो कितना बचा? 21 8 13 ऐसा यूनिट जो भी है सेंटीमीटर. रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लोइंग इन इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लोइंग आउट. कंटिन्यूटी इक्वेशन बोल सकते हैं. ठीक है. और ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पे. देखो दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Water flows smoothly through the pipe shown in the figure, descending in the process. है ना? Rank 4 numbered section of pipe according to the volume flow rate. Volume flow rate यहाँ पर मोर होगा कि यहाँ पर मोर होगा कि यहाँ पर होगा कि यहाँ. वाटर है, इनकम्प्रेसिबल है. रेट ऑफ फ्लो विल बी इक्वल. पढ़ा हमने, AV कांस्टेंट रहने वाला. तो इक्वल होगा 1 पर 2 पर 3. जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां पे वेलोसिटी मोर हो जाएगी. तो सेम है. द फ्लो स्पीड V थ्रू देम. फ्लो स्पीड किसमें अरेंज करो उनको? ग्रेटेस्ट फर्स्ट. सबसे ज्यादा कहां पर होगी? जहां पर एरिया क्रॉस सेक्शन कम होता है. ग्रेविटी का रोल नहीं है इसमें, डजंट मैटर. जहां पे एरिया क्रॉस सेक्शन कम है फ्लो विल बी मोर. तो 1 पर मैक्सिमम, 1. 2 and 3 पर इक्वल. अच्छा यहाँ पर देखो दिस एरिया क्रॉस सेक्शन इज मोर और दिस इज मोर. दोनों सेम है. देखो सेम ट्यूब ही आ रही है यहाँ पर. दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है. तो 2 and 3 का इक्वल होगा. और सबसे कम किसका होगा? 4 पर. यहाँ पर 4. एरिया क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज. सबसे लीस्ट होगा यहाँ पर 4 पर. द वाटर प्रेशर P विद इन देम ग्रेटेस्ट फर्स्ट. वाटर प्रेशर कहाँ पर मैक्सिमम होगा? 1 पे. ये पढ़ा था हमने. P + ½ ρV² इज इक्वल टू कांस्टेंट. जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है प्रेशर मिनिमम है वहां पे, तभी तो सम कांस्टेंट रहेगा. 1 पे मिनिमम है, ग्रेटेस्ट पहले लिखना है. यहाँ पे वेलोसिटी लीस्ट है, प्रेशर मैक्सिमम होगा 4 पर, फिर 2 and 3 पर, फिर 1 पर. वेलोसिटी का रिवर्स चलता है प्रेशर. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 का आंसर देखते हैं. All ties 1 2 and 3 tie and 4. Wider means lower. 4 3 2 1 है ना. 3 2 इक्वल ही रहेंगे. Wider and lower means more pressure. अच्छा ओके. यहाँ पर अगर इन्होंने वर्टिकल दिखाया है